Hello and welcome everyone. Myself Meenakshi and today we will discuss about the respiratory tract infection. So first of all, what is respiratory tract infection? When many disease occurs in the respiratory tract, then these diseases are called respiratory tract infection. For example, a person is suffering from pharyngitis and at the same time that person also suffer from the epiglottitis, sinusitis, common cold, etc. Then the combination of these all diseases are called respiratory infection. Okay, basically respiratory infections are of two types: upper respiratory tract infection and lower respiratory tract infection. Upper respiratory tract infection include nasal cavity, pharynx and larynx. Lower respiratory tract infection include trachea, bronchi and lungs. In this lecture, we will discuss only about the first upper respiratory tract infection, and in the further lecture, we will discuss about the lower respiratory tract infection. Okay, so let's go through it. First, we will discuss about the upper respiratory tract infection. Okay, so basically, upper respiratory tract infection is an acute infection of nose, sinuses, pharynx, and larynx. Okay, so basically, it includes nose, sinuses, pharynx, and larynx. Okay, in this lecture we will discuss about its causative agent, pathogenesis, pathology, symptoms and also classification. Okay, now we will discuss about the causative agents. So most of the etiological agents include viruses and bacteria. So basically, upper respiratory infection is caused by viruses and bacteria. Viruses include rhinovirus, adenovirus, influenza virus and coronavirus, whereas bacteria include Streptococcus pneumonia, Streptococcus pyogenes and Haemophilus influenza. Okay, these are the common etiological agents that cause upper respiratory tract infection. Now we will discuss about its pathogenesis. Okay, the first thing is that it is commonly caused by viruses and bacteria, and the mode of infection is via droplets. Mode of infection is via droplets. Now there are 4 defense mechanisms that are already present in the body of host. Okay, that are already present in the body of human beings to remove the pathogen. First, we will discuss about that defense mechanisms. First defense mechanism that is already present in the human body is the nasal hairs. जो यहाँ पे हेयर लाइनिंग होती है, ठीक है, नेजल कैविटी में, ये बैक्टीरियाज का सबसे पहला बैक्टीरियाज के खिलाफ हमारा फर्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म होता है. और व्हाट इट विल डू, नेजल हेयर लाइनिंग, इट विल ट्रैप द बैक्टीरिया एंड रिमूव इट. ओके, सेकेंड वन वी हैव mucus. Mucus will again trap the bacteria and help in removing it. Third one we have is the angle. There is an angle present between the nose and the pharynx. Okay, that does not allow the bacteria or viruses to reach the lower respiratory tract. So there is an angle between nose and pharynx. Fourth one we have is the ciliary cells. Okay, what these ciliary cells will do, ciliary cells are present in the pharynx. What these ciliary cells will do, they will remove the bacteria. How they will remove the bacteria, ये क्या करते हैं, जब फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया या वायरसेस इन तीनों डिफेंस मैकेनिज्म से बचते हुए सिलियरी सेल्स तक पहुंच गए. अब ये सिलियरी सेल्स क्या करेंगे, जो भी बैक्टीरिया या वायरसेस उनके पास आएंगे उनको फटाफट ट्रैप करेंगे और वापस फेरिंग्स के पास फेंक देंगे, ताकि फेरिंग्स क्या कर सके, वाया स्नीजिंग उनको बाहर निकाल सके बॉडी से. Okay, so now what will happen in the pathogenesis? If bacteria enters into the body and
ओके, फर्स्ट इज बैक्टीरिया। अगर कोई बैक्टीरिया आता है, इन केस ऑफ बैक्टीरिया, तो दो कंडीशंस हो सकती हैं। पहली है बैक्टीरिया। ओके, बैक्टीरिया दो कंडीशंस प्रोड्यूस करता है, बैक्टीरियमिया या फिर टॉक्सीमिया। ठीक है, अगर कोई भी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया आता है तो सबसे पहले वो क्या करेगा, वो इससे बचेगा, फर्स्ट हेयर लाइनिंग से वो बचेगा। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया का कैप्सूल उसे बचा सकता है, और या फिर वो टॉक्सिन प्रोड्यूस कर सकता है, तो टॉक्सिन अपने आप खुद अंदर चला जाएगा, इन सब चीज़ों को ऑल्टर करता हुआ, और इन्फेक्शन प्रोड्यूस करेगा। तो इस तरीके से बैक्टीरिया हमें डिसीज कॉज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो इसको इम्पेयर कर देगा, म्यूकस मेम्ब्रेन से कुछ टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करके म्यूकस मेम्ब्रेन से बच जाएगा। इन सब तरीकों से बैक्टीरिया एक बार अपनी जहां तक उसे जाना है वहां पर पहुंचेगा, और फिर वहां पे जाके बैठ के आराम से इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करेगा। एट द एंड व्हाट इट विल डू, इट विल प्रोड्यूस इन्फ्लेमेशन। इन सब डिफेंस मैकेनिज्म से बचता हुआ इन्फ्लेमेशन वो प्रोड्यूस करेगा। इन केस ऑफ वायरसेस, नाउ व्हाट विल वायरसेस डू, वायरसेस जो होते हैं वो किसी भी सेल को इन्फेक्ट नहीं करते, बल्कि वो क्या करते हैं, हमारी जो बॉडी में एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट हैं उनके बीच में जंक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक एपिथेलियल सेल दूसरे एपिथेलियल सेल के साथ जुड़ने के लिए एक जंक्शन बनाता है अपने बीच में, तो ये वायरसेस उस जंक्शंस को जाके ऑल्टर करते हैं, उस जंक्शंस को जाके चेंज कर देते हैं, और ये क्या करते हैं, जो एपिथेलियल सेल्स के नीचे टिश्यूज प्रेजेंट रहते हैं उनमें जाके इन्वेड करते हैं, एट द एंड इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करते हैं। इस वे में बैक्टीरिया और वायरसेस हमें इन्फेक्ट करते हैं। सो दिस इज द पैथोजेनेसिस ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। नाउ नेक्स्ट वी हैव द पैथोलॉजी। ओके, पैथोलॉजी में क्या होता है, अगर कोई भी बैक्टीरिया या वायरसेस बॉडी के अंदर आते हैं तो सबसे पहले म्यूकस इन्फ्लेमेशन हो सकती है, म्यूकोसल इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग हो सकती है, एरिथमा प्रोड्यूस हो सकता है। ओके, इसके अलावा जितना भी हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है वो सारा ऑल्टर हो जाएगा। ओके, सिलियरी मूवमेंट जो है वो इम्पेयर हो जाएगा। सो दिस इज द पैथोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। नेक्स्ट वी हैव सिम्टम्स। ओके, नेक्स्ट वी हैव symptoms of respiratory tract infection. So symptoms include cough, sneezing, headache, okay, and so on. Cough, sneezing, headache, facial pain, running nose, ये सब हम experience कर सकते हैं in case of URTI, that is upper respiratory tract infection. नेक्स्ट वी हैव द क्लासिफिकेशन। अब हम वो डिसीजेस पढ़ेंगे, वो इन्फेक्शंस पढ़ेंगे जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आते हैं। ठीक है, सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फेक्शंस जिनको मिलाकर उन सब चीज़ों को हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं। सो फर्स्ट वन इज राइनाइटिस। राइनाइटिस को हम कॉमन कोल्ड भी बोलते हैं। ये ज़्यादातर वायरल इन्फेक्शंस की वजह, वायरल एजेंट्स की वजह से होता है। फॉर एग्जांपल एडिनोवायरस, कोरोना वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, ये सब वायरसेस मिलकर राइनाइटिस यानी कि कॉमन कोल्ड कॉज करते हैं। इसमें अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स जो देखने को मिलते हैं वो है स्नीजिंग, रनिंग नोज, कंजेशन ऑफ नोज, स्नीजिंग, रनिंग नोज, ये सब हमें सिम्टम्स राइनाइटिस यानी कि कॉमन कोल्ड में देखने को मिलते हैं। सेकेंड इन्फेक्शन जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में देखा जाता है वो है साइनसाइटिस। ओके, साइनसाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनसिस। साइनसिस का जब इन्फ्लेमेशन होता है तो उसको हम साइनसाइटिस बोलते हैं। इसका जो इटियोलॉजिकल एजेंट है वो दोनों है, बैक्टीरिया प्लस वायरसेस। बैक्टीरिया के केस में एडिनोवायरस, राइनोवायरस, कोरोना वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस हो सकते हैं। बैक्टीरिया के केस में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा हो सकता है। इसमें जो सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं इन केस ऑफ साइनसाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनसेस, तो इसमें फेशियल पेन हमें महसूस हो सकता है, फेशियल पेन हो सकता है। इसके अलावा हेडेक और प्लग नोज। ओके, हेडेक and facial pain, headache and plug nose. Third one we have pharyngitis and tonsillitis.
pharyngitis and tonsillitis is the inflammation of pharynx and tonsils. इसमें क्या होता है, जो pharynx है इसमें जो symptoms हमें देखने को मिल सकते हैं वो है pharynx जो होता है वो inflamed हो जाता है. ओके, pharynx inflamed हो सकते हैं, red हो सकते हैं, उनमें swelling देखने को मिल सकती है. So these are the symptoms that we can see in case of pharynx and pharyngitis and tonsillitis. इसका जो etiological agent है वो ज़्यादातर viruses होते हैं. For example, adenovirus, कोरोना वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस. बैक्टीरिया बहुत कम केस में फेरेंजाइटिस या टॉन्सिलाइटिस करते हैं, और बैक्टीरिया यहाँ पर वही स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा हो सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव फोर्थ वन इज लैरिंजाइटिस. ओके, लैरिंजाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ लैरिंक्स. इसमें जो हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वो है होर्सनेस ऑफ वॉइस, और सेकेंड सिम्टम जो हमें देखने को मिलता है वो है डीपनिंग एंड लोअरिंग ऑफ वॉइस. डीपनिंग या फिर लोअरिंग, वॉइस की डीपनिंग या लोअरिंग हो सकती है. इसके जो कॉजेटिव एजेंट्स हैं वो ज़्यादातर वायरसेस ही हैं. ठीक है, इसमें वायरसेस ज़्यादातर लैरिंजाइटिस कॉज करते हैं. फॉर एग्जांपल सेम वायरसेस लाइक एडिनोवायरस, कोरोना वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस एक्सेट्रा. वन थिंग मोर, इन केस ऑफ फेरेंजाइटिस एंड टॉन्सिलाइटिस के केस में हमें एक्सोडेट फॉर्मेशन भी दिख सकता है और मेम्ब्रेन फॉर्मेशन भी दिख सकता है. ओके, सो दीज आर टू थिंग्स मोर इन केस ऑफ लैरिंजाइटिस एंड टॉन्सिलाइटिस. ओके, बैक टू द लैरिंजाइटिस. लैरिंजाइटिस में है हॉर्सनेस, वॉइस जो होती है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है. डीपनिंग एंड लोअरिंग ऑफ वॉइस देखने को मिल सकती है, और पॉजिटिव एजेंट इसके वायरसेस. नेक्स्ट वी हैव इज द laryngo tracheobronchitis. Laryngotracheobronchitis में सिम्टम्स जो देखने को हमें मिलते हैं वो है इंस्पायरेटरी स्ट्रीडर. इंस्पायरेटरी स्ट्रीडर में क्या होता है? Inspiratory stridor is a condition in which person suffers from the high pitch voice during breathing. ब्रीदिंग के टाइम पे जिस भी पर्सन को लैरिंगोट्रैकियोब्रोंकाइटिस होगा, जब वो ब्रीथ करेगा तो एक हाई पिच साउंड हमें सुनने को मिलता है. एक बहुत ही गंदा सा साउंड आता है जब वो पर्सन ब्रीथ करता है. उस चीज़ को हम इंस्पायरेटरी स्ट्रिडर बोलते हैं. नेक्स्ट, अ पर्सन कैन सफर फ्रॉम, इन द केस ऑफ लैरिंगोट्रैकियोब्रोंकाइटिस, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस. हॉर्सनेस हो सकती है वॉइस में, फीवर भी आ सकता है. और ये लैरिंगोट्रैकियोब्रोंकाइटिस है वो ये ज़्यादातर बच्चों में देखा जाता है जिनकी एज लेस देन 3 इयर्स होती है. ठीक है, और लैरिंगोट्रैकियोब्रोंकाइटिस का इटियोलॉजिकल एजेंट वायरसेस ही है. इस लैरिंगोट्रैकियोब्रोंकाइटिस को बैक्टीरिया कॉज नहीं करते. सो मोस्टली इट इज कॉज्ड बाय द वायरसेस लाइक एडिनोवायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस एंड राइनोवायरस. एंड द लास्ट वन वी हैव इज एपिग्लोटाइटिस. एपिग्लोटाइटिस में एपिग्लोटाइटिस क्या होता है? इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ एपिग्लॉटिस. ओके, इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ एपिग्लॉटिस. इसमें जो हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वो है डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, इंसान अच्छे से खा नहीं पाता, फीवर हो जाता है. ओके, एंड इट इज मोस्टली कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया दैट इज हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप B. Okay, so these are the infections that a person can suffer from in case of upper respiratory tract infection. देखो कितने सारे इन्फेक्शंस एक साथ हो रहे हैं, इसलिए हम इसको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस बोलते हैं. जब ये सारे इन्फेक्शंस एक ही पर्सन में एक साथ हो जाते हैं तब उस चीज को रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन बोलते हैं. ओके, सो this we have explained in the URTI, and the next lecture we will see about the lower respiratory tract infection. Hope it's helpful. Thank you.